Hello, dear students. I hope that you all are fine and taking good care of yourself. Now, today we are going to read a poem from English Bravia that is given on page number 12 and 13. So, students, this poem is about butterfly. Butterfly किसे नहीं पसंद? बटरफ्लाई के पीछे भागना, उन्हें पकड़ना हम सबको अच्छा लगता है. If we explore, we will find so many beautiful butterflies around us. But it is a most wonderful creation of God. So in this poem, the poet explains how he feels when he throughout the day watches the butterfly flying here and there, but when the butterfly hides in the evening. तो जब इवनिंग में बटरफ्लाई छुप जाती है, कहीं चली जाती है, तो पोएट को बहुत अकेलापन महसूस होता है. तो यही चीज है जो पोएम हम सबके साथ में शेयर कर रहा है. दिस पोएम इज रिटन बाय हेदर स्कॉट. Okay, so now let's read out the poem. Oh butterfly, where do you go when the sunset itself does show? I see you quite frequently when the sun shines overhead, but where are you when I'm put to bed? The days are long, the sun is strong, still then I see you flutter with wings as soft as butter, yet when shines the moon, why I am alone. I hear not soft wings beating upon my window sill, nor do I see your pupil upon the miller's mill. Where do you go at night when the stars are shining bright? In the daytime I see you flutter round and round from the sky to the ground. Oh butterfly, where do you go when the sunset itself does show? Okay, now let's read the poem line by line. Oh butterfly, where do you go when the sunset itself does show? So students, here the poet is asking the butterfly that where it goes when the sunset is there, at the time of the sunset, in the evening, where it goes. पोएट कह रहा है कि मुझे तुम सनसेट मीन्स इवनिंग में नजर नहीं आती हो, तुम कहाँ चली जाती हो. I see you quite frequently when the sun shines overhead, but where are you when I'm put to bed? So the poet is saying that throughout the day it sees it. Means पोएट हमेशा दिन के टाइम पे जब बहुत ज्यादा सूरज शाइन करता है उस समय बटरफ्लाई को इधर उधर उड़ते हुए फ्लटर करते हुए देखता है. बार बार उसे बटरफ्लाई उस समय दिखाई देती है. लेकिन जैसे ही पोएट का सोने का टाइम होता है या फिर इवनिंग है, सनसेट हो जाता है, तब बटरफ्लाई कहाँ चली जाती है. The days are long, the sun is strong, still then I see you flutter with wings as soft as butter, yet when shines the moon, why I am alone? The days are long, the sun is strong. So from this line it is clear that it is a summer time. So गर्मी के दिनों में जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और जो सूरज है वो बहुत तेज शाइन करता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. पोएट कह रहा है कि इवन गर्मी के दिनों में भी जब दिन बहुत लंबे होते हैं, जब बहुत गर्मी होती है, तभी भी मैं तुम्हें इधर उधर उड़ते हुए देखता हूँ. विद द विंग्स एज सॉफ्ट एज बटर. तो यहाँ पोएट ने बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो किससे कंपेयर किए हैं? इट इज कंपेयर टू बटर. बटर के जैसे सॉफ्ट है तुम्हारे विंग्स. येट व्हेन शाइन्स द मून व्हाई आई एम अलोन. So the poet is asking, when the moon shines, when the air is cold, when the environment becomes cold, then where do you go? तब तुम कहाँ चली जाती हो? ठंड जब हो जाती है तब तुम कहाँ जाकर छुप जाती हो? I heard not soft wings beating upon my window sill, nor do I see your pupa upon the miller's mill. So here pupa is a insect. Okay, so I heard not soft wings beating upon my window sill. So here the poet says that I hear not soft wings beating upon my window sill. So poet कह रहा है कि इवनिंग में
इवन तुम्हारी जो सॉफ्ट विंग्स हैं, तुम जब उन विंग्स को फड़फड़ाती हो तो वो भी मुझे सुनाई नहीं देती। दिन में तो वो पोएट के विंडो सील मीन्स जहाँ विंडो का गेट होता है और उसके नीचे एक छज्जे जैसा बना होता है, हार्ड पार्ट होता है, उसे विंडो सील कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि दिन में तो मैं तुम्हें विंडो सील के आसपास भी देखता हूँ, फड़फड़ाते देखता हूँ, लेकिन इवनिंग में तो तुम्हारे पंखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। Nor do I see your pupa upon the miller's mill. Pupa is an insect which is at the stage of development. Okay, so he says that तुम्हारा जो pupa है, जो insect है, जो बहुत early stage में रहता है, even मैं वो भी नहीं देखता हूँ। Miller's mill. Miller's mill means miller is a person who is working at the flour mill. Okay, सो जो आटे की चक्की पे काम करता है या कोई भी और दूसरी चक्की पर काम करता है, ही इज नोन एज मिलर। तो द पोएट सेज आई डोंट सी योर प्यूपा ऑन द मिलर्स मील आल्सो। वेयर डू यू गो एट नाइट व्हेन द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट? तुम रात में कहाँ ओझल हो जाती हो, कहाँ जाकर छुप जाती हो? जब मतलब इवनिंग में सुंदर सुंदर तारे भी दिखने लग जाते हैं, पर तुम मुझे नजर नहीं आती हो। In the daytime, I see you flutter round and round from the sky to the ground. दिन में तो मैं तुम्हें इधर उधर फ्लटर करते हुए उड़ते हुए देखता हूँ। राउंड एंड राउंड मीन्स द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग राउंड एंड राउंड फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। कभी मैं तुम्हें ऊपर उड़ते हुए देखता हूँ, कभी नीचे ग्राउंड पर, कभी फूलों पर, कभी दीवारों पर, कभी विंडो सील पर। लेकिन जैसे ही शाम होती है, रात होती है, तुम गायब हो जाती हो। Oh butterfly, where do you go when the sunset is itself does show? Butterfly, तुम कहाँ चली जाती हो जब मीन्स जब सनसेट जो है वो भी दिखता है, वो भी धीरे धीरे गायब होता है, लेकिन तुम सडन कहाँ गायब हो जाती हो, कहाँ चली जाती हो? स्टूडेंट्स, दिस इज अ पोएम। नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। So now let's solve the exercise that is given on page number 13. Okay. So the question is, on the basis of your reading of the poem, answer the following questions. First one, pick out words from the poem that describe the movement of the butterfly and its appearance. So we have to pick out some words that are describing the butterfly and its movement. So the words are flutter, round and round, wings as soft as butter, soft wings. So these are some words that have been used in the poem to describe the butterfly and its appearance. Okay. Next one, what happens to the butterfly when the sun goes down? The butterfly disappears when the sun goes down. जब सन सेट हो जाता है और इवनिंग नाइट स्टार्ट अपीयरिंग, सो द बटरफ्लाई डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। वॉट पीरियड ऑफ द डे इज़ बींग मैंशन? इसमें कौन सा मतलब दिन का कौन सा समय इसमें मैंशन किया गया पोएम में? सो द डे टाइम फ्रॉम सन राइज टू सन सेट इज बींग मैंशनड हियर। सो सन राइज से लेके सन सेट तक का पूरा टाइम इसमें मैंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, वॉट इज़ द पोएट वंडरिंग अबाउट? वॉट इज़ द पोएट वंडरिंग अबाउट? पोएट क्या सोच रहा है? द पोएट इज वंडरिंग वाई डज द बटरफ्लाई डिसअपियर्स इन द इवनिंग एंड लीव्स द पोएट अलोन। और उसे लग रहा है कि वो इवनिंग में क्यों गायब हो जाती है और पोएट को अकेला क्यों छोड़ देती है। ओके, दीज आर द आंसर्स। नाउ B2, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। द सन इज स्ट्रॉन्ग एंड द पोएट ऑब्जर्व द बटरफ्लाई फ्लटरिंग। ओके, नेक्स्ट वन, द पोएट कैनॉट हेयर dash beating upon the windmill. The poet cannot hear wings beating upon the window sill. Okay, next, what is the comparison used in the poem or identify the simile? तो wings as soft as butter, ये कंपैरिजन विंड को कंपेयर किया गया है किससे? बटर से। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आंसर्स हैं। डू इट इन योर कॉपी दीज आंसर्स इन योर ब्राविया बुक। और जो भी आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ वो भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे मैं आपको आंसर्स सेंड कर दूँगी। यू कैन मैच योर आंसर्स वेदर योर आंसर्स आर राइट और रॉन्ग।
अगर रॉन्ग होते हैं तो आप इरेज करके उन्हें सही करोगे. ओके, दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे. थैंक यू.